शासनाधिकारी कचहरी और तालुका प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कचहरी प्रेरित वर्चुअल क्लास में मैं हिना पटेल राजपुर प्राथमिक कन्या शाला नंबर 4 से आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा विषय है हिंदी। मेरा विषय है हिंदी कक्षा 6 इकाई 3। बच्चों, आज हम इकाई 3 का अभ्यास करेंगे। इकाई 3 का अभ्यास करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुननी तो बच्चों आपको पसंद है ना सबको? तो आज मैं आपको हमारी मातृभाषा में एक कहानी सुनाती हूँ, वो आप ध्यान से सुनिए। एक ગામ હતું અને ગામની બાજુમાં એક નદી હતી. નદીની પેલે પાર એક સંત રહેતા હતા. એ સંત દરરોજ ગામ નદી પાર કરી અને ગામની અંદર ભિક્ષા લેવા આવતા. વચ્ચે નદીની અંદર જુદા જુદા જીવજંતુ રહેતા હોય, જેવી કે માછલી, કરચલા, વીંછી. તો સાધુ ત્યાંથી દરરોજ ભિક્ષા લેવા આવે અને પાછા એમની કુટીરમાં જતા રહે. તો સાધુ ભિક્ષા લેવા આવતા હતા અને રસ્તામાં એમને એક અવાજ સંભળાયો કે બચાવો, બચાવો, બચાવો. તો સાધુ પાછળ વળીને જોયું તો એક વીંછી બૂમા પાડી રહ્યું હતું કે મને બચાવો, બચાવો. તો સાધુને દયા આવી. કેમ કે સાધુ તો દયાળુ હતા, એ સંત હતા, મહાત્મા હતા, એટલે એમના કોઠામાં દયા હતી. તો એમને એમ થયું કે અરે મારે આ વીંછીને બચાવવો જોઈએ. તો સાધુ તરત ત્યાં ગયા અને એમને વીંછીને જોયું તો વીંછી પાણીની અંદર ડૂબતો હતો. તો એમને તરત વીંછીને બહાર નીકાળ્યો. વીંછીનો જીવ બચી ગયો. જેવો વીંછી બહાર આવ્યો તરત વીંછીને એમ થયું, એનો સ્વભાવ જે હતો એ રીતે વીંછીએ તરત સાધુને ડંખ માર્યો. સાધુને ખૂબ પીડા થવા લાગી. એમના શરીરની અંદર પીડા થઈ, ખૂબ પીડા થવા લાગી. તો સાધુ પીડાતા પીડાતા બોલ્યા કે અરે રે, મેં તને બચાવ્યો અને તે જ મને ડંખ માર્યો. તો વીંછી કે શું કરું, ડંખ મારવો તો મારો સ્વભાવ જ છે. તો સાધુને એમ થયું કે ચલો, તારો સ્વભાવ ડંખ મારવાનો છે તો મારો સ્વભાવ તને બચાવવાનો થયો. તો મેં તને બચાવ્યો. તું ડંખ મારીશ તો પણ હું તને બચાવીશ. તો વીંછી ત્યાંથી સાધુ ભિક્ષા લેવા જતા રહ્યા. બીજો દિવસ આવ્યો. બીજા દિવસે પણ ત્યાંથી સાધુ નીકળતા હતા. ફરીથી વીંછીએ જોયું તો ફરીથી પણ વીંછીને એમ થયું કે આજે પણ હું આ સાધુને હેરાન કરું. એને તો હવે શેતાની સૂજી, એમને હેરાન કરવાનું ટેવ પડી ગઈ. તો ફરીથી વીંછી ડૂબતો હતો અને વીંછીએ બૂમ પાડી. તો ફરીથી સાધુ મહારાજ આવ્યા અને સાધુને ફરીથી પણ વીંછીને બચાવી અને વીંછીએ એની આદત પ્રમાણે સાધુને ફરીથી ડંખ માર્યો. સાધુ ખૂબ પીડાવા લાગ્યા. સાધુએ કહ્યું કે હું તારી આ આદત છોડાવીને રહીશ. સાધુ એને સમજ આપી કે હું તને બચાવું છું અને તું મને ડંખ મારે છે. ત્યારે વીંછી એવું કહ્યું કે મારો તો સ્વભાવ જ છે મહારાજ, કે મારો તો સ્વભાવ અંદરથી ગુણ જ છે કે હું ડંખ મારું. તો સાધુએ કહ્યું કે તું ડંખ મારતો રહીશ તો પણ હું તને બચાવતો રહીશ. આ વસ્તુ એક નાવિક જોઈ રહ્યો હતો. તો નાવિકે કહ્યું કે મહારાજ, આ વીંછી તમને દરરોજ ડંખ મારે છે, છતાં પણ તમે એને બચાવો છો. ત્યારે સાધુ મહારાજે કહ્યું કે ડંખ મારવો એ એનો સ્વભાવ છે અને એને બચાવવું એને મારો સ્વભાવ છે. હું એના ખરાબ ગુણ સામે મારી સારો ગુણ ભૂલી જઈશ નહીં. આ વાત સાંભળી ત્યારે વીંછીને પણ પોતાના ઉપર પછતાવો થયો અને એને કહ્યું કે આજ પછી હું કોઈને પણ આવી રીતે હેરાન કરીશ નહીં. તો સાધુએ કહ્યું કે સામેવાળું ગમે તેટલું ખરાબ હોય પણ આપણે આપણો સ્વભાવ છોડવો જોઈએ નહીં. તો यही बात, ऐसी ही बात आज हम हमारी इकाई 3 समझदार नन्ही में सीखेंगे कि यही ऐसी ही एक कहानी है कि नन्ही एक छोटी सी बतख है और वो अपना स्वभाव, अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ती. सामने बिच्छू है जो नन्ही को बार बार परेशान करता है, नन्ही उसको बचाती है तो बिच्छू फिर भी उसको काटता है, मगर नन्ही को हम उसका स्वभाव नहीं छोड़ती. नन्ही कहती है कि मैं उसकी गंदी आदत छुड़वा कर रहूंगी और वह अपने अच्छे स्वभाव से वो बिगड़ा हुआ बिच्छू को सुधार देती है. तो ये बात
हम आज हमारी हमारी इकाई 3 में देखेंगे। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं इकाई 3। सबसे पहले तो आज हम इकाई 3 का श्रवण करेंगे वीडियो द्वारा। इकाई 3 समझदार नन्ही। 3 समझदार नन्ही। विद्यार्थी मित्र, पढ़ो और सुनो। कहानी। एक बड़ा सा तालाब जहाँ एक नन्ही बतख अपनी माँ के साथ रहती थी। उसी तालाब के किनारे एक बिच्छू भी रहता था और तालाब के पास दलदल भी था। एक दिन नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। उसने सोचा, हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। वह खिसियाकर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों? नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं? मेरा काम बचाना है। मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? नन्ही ने पूरी घटना बता दी।
माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही। भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। बाल दोस्तों, आपने वीडियो द्वारा ये सुना। अब हम हमारी पुस्तक का इकाई है वो देखेंगे और उसकी समझ लेंगे। तो आप अपनी पुस्तक निकालें और इकाई निकालें। अब मैं आपको ये पढ़कर सुनाती हूँ। नन्ही बतख। बच्चों, आप ध्यान से अंदर देखिए और जो मैं समझाती हूँ वो सुनिए। बीच बीच में जो शब्द आते हैं ना, उसको भी ध्यान से सुनिए। ये कहानी में जो बतख है, बतख और उसका बच्चा, जो छोटा बतख है उसका नाम है नन्ही, जो दोनों अंदर नदी के अंदर रहते हैं। तो अब हम ये इकाई देखते हैं। नन्ही बतख तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। नन्ही बतख, जो छोटी बतख थी, वो किनारे पर, तट पर मतलब किनारे पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंसा है। दलदल मतलब क्या होता है कि जो माटी और पानी का गीला हो, जहाँ हमारा पैर फिसल जाता है, पैर घुस जाता है। जब इसमें घुसते हैं तो हम जल्दी से निकल नहीं पाते, तो ऐसा एक दलदल था, उसमें वो बिच्छू फंस गया था। बिच्छू ने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो। नन्ही को उस पर दया आ गई। उसने बिच्छू को दलदल से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। जो बिच्छू दलदल में फंस गया था वो प्रार्थना कर रहा था। नन्ही को देखा तो बोला कि बहन मुझे बचा लो। तो नन्ही को उस पर दया आ गई, तो उसने बिच्छू को उस दलदल में से निकाल कर जो किनारे पर, तट पर एक सूखा स्थान था, वहां पे रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। बिच्छू को जैसे ही नन्ही ने बाहर निकाला तो बिच्छू को एक शैतानी सूझी। उसको गंदा भी सोच आई। उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी। उसको बहुत पीड़ा उठी। उसने बिच्छू से पूछा, क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? बिच्छू लापरवाही से बोला, क्या करूं, डंक मारना मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो। जब नन्ही ने पूछा तो बिच्छू लापरवाही से बोला कि मैं क्या करूं, ये मेरा डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही बोली, तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, ये आदत तुम्हारी अच्छी नहीं है, ये आदत तुम्हारी गंदी आदत है, तो तुम ये गंदी आदत छोड़ दो। उसने नन्ही को तुम यह गंदी आदत छोड़ दो, नहीं तो कोई मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। यह तुम्हारी गंदी आदत है, इसी वजह से यदि कभी तुम मुसीबत में होगे तो तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी कर आगे बढ़ गया। अनसुनी करना मतलब कि उसने जो बोला नन्ही ने, यह बात बिच्छू जैसे सुना ही नहीं, ऐसे आगे बढ़ने लगा। नन्ही अपनी माँ के पास नदी में चली गई। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी, तुम कहाँ रह गई थी? नन्ही बोली, माँ, एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। नन्ही ने क्या कहा कि बिच्छू जो दलदल में फंस गया था उसको बचाने में मुझे देर हो गई। माँ खुश होकर बोली, बेटी, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अपनी बेटी का अच्छा काम देखकर माँ बहुत खुश हो गई और वह बोली कि बेटी, तुमने ये तो बहुत अच्छा काम किया है, मुसीबत में आने वालों को बचाना ये हमारा अच्छा काम है। नन्ही बोली, लेकिन बदले में उसने मुझे डंक मार दिया। नन्ही ने क्या कहा कि मैंने उसे बचाया मगर बदले में उसे बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। माँ बोली, बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे चाहे कितनी बार बचाओ वह बार बार डंक मारता रहेगा। माँ ने क्या कहा कि बिच्छू
अपनी गंदी आदत का गुलाम हो गया। तुम जितनी भी बार उसको बचाओगी मगर वो अब बार बार तुम्हें डंक मारता रहेगा। नन्ही बोली, माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। नन्ही ने क्या कहा उसकी माँ को कि मैं बिच्छू की गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। हमारी कोई सहेली हो और उसकी भी कोई ऐसी आदत हो तो हमें उसका उस पर ध्यान देकर उसकी ये आदत छुड़वानी चाहिए। कुछ दिन बाद बिच्छू के प्राण पुनः संकट में पड़ गए। इस बार वह पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतारने लगा। एक दूसरी बार क्या हुआ कि बिच्छू के प्राण पुनः पुनः संकट में पड़ गए। वो दूसरी बार भी मुसीबत में आ गया। इस बार क्या हुआ कि वो पानी की धारा में, पानी का जो बहाव था उसमें गिर गया और वहां वो डूबने लगा। डूबता था तब उसको अपनी मौत दिखाई। मौत सामने देखकर बिच्छू को नन्ही की याद आ गई। जब वो डूबने लगा तो उसको अपनी मौत सामने दिखाई दी और उसको नन्ही की याद आ गई। वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली। वो क्या हुआ कि बिच्छू जब डूब रहा था तो उसको नन्ही को पुकारने लगा। वह झपट कर बिच्छू के पास आ गई। सहसा ही उसके मन में विचार आया, अब मैं इस गंदे स्वभाव वाले बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। अचानक ही उसको ऐसा विचार आया कि अब मैं ये गंदी आदत वाले बिच्छू को बचाऊंगी नहीं, डूबने दूंगी। बिच्छू गिड़गिड़ाने लगा, बहन मुझ पर दया करो। बिच्छू उसके आगे गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा कि बहन मुझ पर दया करो। नन्ही का मन डोल गया। मन डोल गया वो भी एक रूढ़ी प्रयोग है कि मन डोल जाना, मतलब कि विचार बदल गया। नन्ही का मन बदल गया, उसका विचार बदल गया। उसने सोचा हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने ऐसा सोचा कि मैंने उसको अगली बार समझाया था तो हो सकता है इसने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। नन्ही ने बिच्छू को दोबारा जीवन दान दिया। बिच्छू अपने स्वभाव के अनुसार उसे डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। नन्ही ने दूसरी बार भी उसको डूबते हुए बचाया और उसको बाहर निकाला और उसको जीवन दान दिया, मतलब कि जीवन दान देना ये भी एक रूढ़ी प्रयोग है कि दोबारा दूसरा जीवन देना। तो उसने बिच्छू को अपने स्वभाव के अनुसार वो डंक मारने आया तो आगे बढ़ा। नन्ही उसका इरादा समझ गई। नन्ही उसका इरादा समझ गई। वह मुस्कुराकर बोली, बिच्छू भाई ठिठक क्यों गए, डंक मारो। बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया। नन्ही उसका इरादा समझ गई और नन्ही बोली कि बिच्छू भाई क्यों रुक गए, डंक मारो। आपका तो आपका तो आदत है डंक मारना तो डंक मारो। बिच्छू यह सुनकर शर्म से पानी पानी हो गया। शर्म से पानी पानी हो जाना मतलब लज्जित हो गया। वह खिसिया कर बोला, बहन एक बात बताओ, मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की, ऐसा क्यों। वह खिसिया कर बोला, बहन बहन मैंने सदा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुमने मुझे बचाया और मैंने तुम्हें डंक मारा, फिर भी तुमने मेरे साथ भलाई ही की क्यों की। नन्ही बोली, भलाई करना मेरा स्वभाव है। नन्ही ने कहा कि भलाई करना, कोई भी बुरा हो, कोई मेरे साथ कैसी भी बुराई करे मगर मैं उसका भला ही करती हूँ, ये मेरा स्वभाव है। मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूँ। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो मैं तुमसे बदला लेने के लिए मेरा अच्छा गुण क्यों बदल दूं, ऐसा नहीं कहती है। सामने वाला कितना भी खराब हो, वो हमारे साथ कितना भी खराब करे मगर हमें हमारी अच्छी आदत नहीं छोड़नी चाहिए, ऐसा नहीं हमें यह कहानी द्वारा सिखाती है। मेरा काम बचाना है, मैं मुसीबत में पड़े को बार बार बचाती रहूंगी। नन्ही कहती है कि मेरा काम है जो मुसीबत में हो उसको बचाना। तो कोई भी कैसी भी मुसीबत में हो
तो मैं मेरे स्वभाव के अनुसार उसको बचाती रहूंगी। तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम मारते रहो, देखती हूँ कौन जीतता है। नन्ही कहती है कि मेरा काम तो है मुसीबत में पड़े हुए के बचाना, और तुम कहती हो कि तुम्हारा काम है डंक मारना। तो देखो, तुम डंक मारते रहो, मैं देखती हूँ हम दोनों में से कौन जीतता है। मतलब कि भलाई जीतती है या बुराई जीतती है, वो मैं देखती रहूंगी। हमेशा भलाई की आगे बुराई की जीत नहीं होती, हमेशा भलाई की ही जीत होती है। बिच्छू पछतावे से भर गया। बिच्छू को बहुत पछतावा हुआ। अपने अपने उसने जो काम किया था उसके ऊपर उसको पछतावा हुआ। नन्ही बहन, आज तुम जीत गई। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं किसी निर्दोष जीव को डंक नहीं मारूंगा। बिच्छू नन्ही को कहता है कि नन्ही बहन तुम जीत गई और मैं हार गया। अब मैं कभी किसी निर्दोष जीव को कभी डंक नहीं मारूंगा। बच्चों, हमें इस कहानी से ये भी सीखना चाहिए कि अब भलाई के आगे बुराई का अंत होता है। हमें हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए। आपने देखा, बिच्छू ने भी अपनी गंदी आदत छोड़ दी, तो हमें भी इससे यह सीखना चाहिए कि हमारे में भी कोई गंदी आदत हो तो हमें तुरंत छोड़ देनी चाहिए और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। नन्ही खुश होकर नदी में चल दी। नन्ही बहुत खुश हो गई और उसने देखा कि बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी। तो नन्ही ये देखकर बहुत खुश हो गई और खुश होकर वो नदी में चल दी। माँ ने आज फिर पूछा, बेटी कहाँ देर कर दी? माँ ने आज फरीથી पूछ्યું, તમે પણ माँ ने आज फिर से पूछा कि बेटी कहाँ देर कर दी? आप भी कभी बाहर जाते हो और देर से आते हो तो आपकी मम्मी भी आपको पूछती है ना कि कहाँ गए थे, क्यों इतनी देर कर दी। अपने स्कूल से जब देर जाते हो तो भी कभी आपकी मम्मी पूछती है। तो इसी तरह नन्ही को भी उसकी मम्मी ने पूछा, उसकी माँ ने पूछा। नन्ही ने पूरी घटना बता दी, जो रास्ते में हुआ था वो सब बात नन्ही ने अपनी माँ को बता दी। माँ प्यार से बोली, प्यारी समझदार नन्ही, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह प्यारी समझदार नहीं, भले लोग अपनी बार बार की भलाई से इसी तरह बुरे लोगों को भला बनने की राह दिखाते हैं। माँ ने उसको सिखाया नन्ही को कि बेटी, भले लोग होते हैं ना, वो अपनी भलाई से, अपने अच्छे काम से, अपने अच्छे गुणों से बुरे लोगों को सही राह पर चलना सिखाते हैं। तो नन्ही प्रसन्न होकर थिरकने लगी। माँ की यह बात सुनकर नन्ही बहुत खुश होकर नाचने लगी। तो बच्चों, आपने देखा इकाई में कि हमेशा भलाई की ही जीत होती है और बुराई का अंत होता है। तो हमें भी हमारे अंदर भलाई का गुण का विकास करना चाहिए। हमारी जो कोई कोई भी बुरी आदत, हम मनुष्य हैं तो हमारे अच्छे और बुरे दो पासे होते हैं। हमारी कई कई आदतें बुरी भी होती है, सामान्य सामान्य तो बुरी आदत हो तो भी हमें उसको छोड़ देनी चाहिए। और इस इकाई द्वारा जो नन्ही हमें सिखाती है उसी तरह हमें अच्छे काम करने चाहिए और बिच्छू की तरह हमें हमारी बुरी आदत छोड़ देनी चाहिए। यह बात अच्छा बच्चों